Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. Yeah, Okay. please go ahead, guys. So yeah, start, Duzin. Well, the fact that Gilgit-Baltistan was ostensibly amalgamated into Pakistan through Major Brown's initiatives is something to be put on record, because for at least a fortnight, it existed as a so-called independent republic, and the Gilgit Scouts had no particular interest in joining Jinnah's new dominion. That must be placed on record too. I mean, they had their own ideas of independence, as it were, just as Hari Singh nursed such ambitions. That is important to point out. But Major Brown took it upon himself to give a quite pleasantly surprised Pakistan the entire districts on a platter. That must be squarely placed on record, that Pakistan never anticipated it, for not the least reasons that it did not even want it, and never even figured in the All India Muslim League arguments of leading up to so-called independence, and in the acronym of Pakistan, as it were. Gilgit-Baltistan doesn't factor into the K of Kashmir also, much as Pakistanis may like to tout that. Then to point out the fact that between 49 and 70, the Gilgit Agency, the erstwhile agency which ran from 1899 to 1974, was administered from Pakistan as a direct unit. It was never conferred any status. It was politically in limbo and represented by an agent commissioner from Islamabad and directly under Islamabad's remit. That must be also squarely placed on record. Of course, Pakistan is disingenuous about it in that it likes to tout the fact that the independent regions of Azad Kashmir, that is Pakistan-administered Kashmir, and Gilgit, the northern areas, what became the northern areas after 1970, when it was rechristened from the Gilgit Agency, have always been a question of political settlement with India whenever that happens, given the 47-48 war. But that is plainly disingenuous, and it's just for public consumption, when the fact is that Islamabad does rule it with an iron fist. And that brings me to the point of the local aspirations and representations of these denizens of this hilly outlier had never been fulfilled. From 1970 to 2007, it was just known as the federally administered northern areas. In 2007, as a sop to local aspirations, it was actually called by its people's ethno-linguistic identity as Gilgit-Baltistan. And President Zardari passed what was a legislative ordinance in 2009, conferring a de facto status on the said region with a unicameral legislative assembly, but nothing substantial has come to pass through that, simply because the representatives of this assembly, as well as these so-called Pakistanis of Gilgit-Baltistan, do not constitutionally participate in any aspect of the electoral or political process of the Pakistani Federation. That must be pointed out, as it were. And of course, it's an impoverished region to say the least. And while much may be made of the CPEC, China-Pakistan Economic Corridor package, that would ostensibly benefit this region, I do not believe CPEC's managers have taken into fact the alpine, fragile ecosystem of this region. As I was wishing to point out, that $72 million has been expended on just a consultative project. Nothing substantial has been trickled down in terms of trickle-down economics to the region, and $72 million is no mean sum. And what was this expended on? Well, Pakistan went out to appoint a commission for a prospective Khunjerab Railways project. The sheer hazard that would be involved, not to mention it would fly in the face of Newton's laws of gravity, is another question, by having such a project link up with the railway up to the Khunjerab Pass after Havelian, which is the Taxila Havelian railway, which does run. But from Abbottabad onwards, up to Khunjerab and the Sust Pakistan border crossing would be simply a pie in the sky. It was never going to come to pass. And now it's not even part of the third phase of the CPEC project running from 2017 to 2030. It has been conveniently shelved. So one wonders, what was that $72 million spent upon? And to think that that could have otherwise been spent so usefully for its denizens who are obviously crying out for development. All right. Okay, now Vinodji. Vinodji,
Can you hear me? Yes. Yes. Yeah, Vinodji, without wasting much Yeah. time, I would request you to please throw some light on the present political situation, since Hussein has already spoken about the legislative developments that have happened between 1948 till very recently 2020, from Karachi Agreement onwards till the recent developments. So I would like you to throw some light on the present political situation and your thoughts. Yeah. Go ahead. Thank you, Siddharth. I think Gurzine has already given a very detailed, broad brush on the sort of history and where things are with respect to Gilgit-Baltistan. But I'd like to sort of spend 5 minutes also talking about the geopolitical location of Gilgit-Baltistan, a bit of history, and then I'll spend 2-3 minutes on the current situation, if you allow me to do that. Yes, of course. Yeah. So in terms of geopolity, I think it's very important to understand why this region is so important. If some of us who are keen students of history, we would have all heard about the great games between the British and the Russians back in late 19th century. And a lot of that maneuvering happened in these sort of northern areas, specifically the areas of Gilgit-Baltistan and Hunza and all northern territories. And because the whole Karakoram sort of pass is also sort of through these regions, and this sort of connects the subcontinent with Russia and China. Therefore, it has always had a very significant geopolitical significance in its own rights. So now, when we talk about uh, how this whole area has sort of developed in the last 200 years, we know that the great General Zorawar Singh, who was part of the Maharaja Gulab Singh's army, he essentially started the Baltistan campaign in 1839, and his forces landed and captured Skardu, which is one of the most important towns in the region, in 1840. So essentially, from 1840 onwards, Gilgit-Baltistan has been initially part of the sort of the Dogra Sikh kingdom till about 1860s, and then once after the Sikhs were defeated and the British sort of won the war, it fell under the British suzerainty from 1860s till about 1947. Now that history is very important because between 1860s and 1947, all the administrators of the Gilgit-Baltistan region, which comprises of, as Burzine has already alluded to, around now in present times around 14 districts, including erstwhile princely kingdoms of Hunza, Nagar, and a few other districts. They all used to pay alimony, or what you call it as allowance to the British. And through the Maharaja of Jammu and Kashmir. So essentially, the allowance was paid to the government of princely state of Jammu and Kashmir, and they then would go into accounting books of the British Raj. So that is very important to understand. And historically, I think 2 or 3 other things from an Indian perspective which are very important to understand is that the great King Chandrapida from Kashmir, when he was by the great Chinese emperor of the time, he was actually given the title of the King of Kashmir, covering larger regions of Tibet as well as the Gilgit-Baltistan region. And therefore, even today, if you go to Skardu, you'll find the great, the Buddhist influence, the great Manthal Buddha rocks. You will find even Zoroastrian tribes. Burzine would be very interested in that. There have been Zoroastrian tribes living in Gilgit since 7th century onwards, and in fact, the Trakhand dynasty was founded by the Zoroastrians in that region. Now, in terms of the introduction of Islam, Sufi Islam came into the region around 14th century. And I think a lot of people who are interested in history of Kashmir know that Mir Said Ali Hamdani, as he came into Kashmir spreading the message of Islam, he also traveled up to the northern regions, and he introduced Sufi Islam in Baltistan specifically. So that's for the history. But the history also dates back to the Kushan period. So you also see a lot of relics of the Kushan period in that region. Therefore, that shows great convergence and great sort of integration of the whole northern region with the Indian rest of the Indian heartland.
Now, coming back to 1947, obviously we all probably know about Major William Brown and his Gilgit Scouts and how they outmaneuvered the local resistance at the time when there was this whole maneuvering going on between India and Pakistan between August of 47 till November, and how he engineered the defection of Gilgit-Baltistan to Pakistan, to the surprise of a lot of Britishers. Well, now obviously we don't know the inside story there, but he did surprise a lot of people at the time. And since then, since 1947, Pakistan has illegally, without any paperwork, sort of held the territories of both Pakistan occupied Jammu and Kashmir, which they call as Azad Kashmir, and Gilgit-Baltistan, which was part of this region until 1970, when this was created as a separate territory known as the northern areas. And the northern areas essentially comprised of Gilgit, Agency, Baltistan, the Ladakh Wazarat, and hill states of Hunza and Nagar. Now, it's very interesting to note. We see that since the removal revocation of sub clauses of Article 370 last year, there has been a lot of noise around the potential demographic changes which India might bring about in the Indian region of Jammu and Kashmir. But Pakistan all along has been playing this game in the illegally occupied territories. And if we look at Gilgit Baltistan, for example, the 1970 move to merge the Gilgit and Baltistan agencies into northern areas, and then the 1974 Supreme Court decision, which abolished the state subject rule in Gilgit-Baltistan, essentially started the Punjabification of the region. So, as Burzine had also alluded to, these the people of the region by the establishment till then were seen as backward people. They were seen as people with no rights. And with the abolishment of state subject rules, essentially a lot of wealthy people from the plains of Pakistan started settling down in the hills of Gilgit-Baltistan, in the Skardu region and other picturesque places. And therefore, this whole idea of demographic changes in the region was actually kick-started by Pakistan establishment. And since then, there have been a number of other changes as well. 1999, there was a Supreme Court ruling in Pakistan for equal rights of the region because of the uprising locally, which till date hasn't been provided to its local population. 2009 Self-Governance Ordinance, which sort of talked about providing self-rule to the people of that region. However, the proxy government of Pakistan still runs the day-to-day affairs of the region of Gilgit-Baltistan. That's essentially the history. I think, Siddharth, you've talked about the Basha Dam. Now, Basha Dam adds another dimension to this whole game, because with the whole CPEC project and the 442 billion rupees contract which the Pakistani government signed, in fact, in May, very recently, with the China Power and Frontier Works organization, is another step. It's very similar to what happened if we look back in history, in 1963. If some of you would remember, the whole Shaksgram track was ceded to China in 1963 Sino-Pak Pact. Now, this whole CPEC corridor and the amount of investment China is bringing into the region, it almost, is a precursor to the repeat of history in that region in many ways, and almost Chinification of the northern territories of Pakistan, which needs to be very carefully looked into and discussed and debated. So that's on the current status. I also wanted to spend a couple of minutes, if it is of interest, specifically to talk about Hunza, which is a very important province in the region. And Hunza is one of the districts of the 14 districts of Gilgit-Baltistan. And if we go back into history, this used to be a princely kingdom in itself. And the reason I want to mention Hunza also is because this is one region in the entire subcontinent which, for a period of about 50 to 60 years, had a dual distinction of being subject to two sovereign powers, both China as well as India, British India at the time. So the Mir of Hunza at the time was paying tributes to both the Yarkand-based Chinese federal governments and also to the British Indian government through Annual gold Jammu and dust Kashmir tribute. princely kingdom.
Annual gold dust tribute. Annually, it used to be called the annual gold dust tribute. Exactly. Because, Thank you, and of Bhusin, course, for he owed clarifying. it to him, if I may, Vinod, just very Yeah. briefly interject, is because of the fact that they used Yarkand pastures and grazing lands, since they didn't have it on the Correct. Hunza side of it, that they used Correct. to use it. And of course, he was more than happy to recognize the Chinese as a suzerain, quite diplomatically, along Absolutely. with this ones on the Kashmir side too. And that's how Yes. Hunza nestled and maneuvered itself during those years, right from the mid 17th century onwards. Absolutely. And I think just to add a little bit more on the history, we've all heard about the McMahon line. And we've also heard about, I think some of us may have heard about Cloud MacDonald. He was the one who actually then facilitated the demarcation of boundaries between China and British India, and he did a lot of work. And at that time, a lot of pressure was put on the Mir of Hunzas to relinquish their claims to Tak Budmash and Raksham areas, so that the Chinese influence can be removed from the area. Now, there is a lot if we can go into in terms of how in 1947 China also tried to maneuver to get hold of the wider territories of the Ladakh region, including the northern areas, and how then they had to backtrack, and therefore what manifestation that has in the current polity with respect to the CPEC corridor and what is happening in these northern territories. But that's a topic for a very long, interesting debate, which we can maybe plan at a later time. But in the modern sort of paradigm, I think what is most important is this Pakistan's effort to almost delegitimize the whole region from Jammu and Kashmir per se, and to make it integrated as part of as a federal state or a province, that maneuvering, and then at the same time claiming the region of Jammu and Kashmir to be a disputed territory. It's almost like an oxymoron in which the Pakistan deep state is operating in, and I think India needs to be very careful in its diplomatic maneuvers and its influence to tread the right path and have the right sort of framework to deal with this kind of dual policy that Pakistan has in these northern regions. Over to you, Siddharth. Thank you so much, Vinodji. It was quite exhaustive. I mean, in the span of 10 minutes, you covered like almost a stint of 150 years of history. I mean, more than that, in fact. Yeah. Thank you so much. And Bhusin, in case if you have some other engagement, you can exit. I still have a few minutes. I would like to hear Pratik's contribution, and then I could perhaps leave. I will just leave subsequently on my own. I'll just check with you on that. Thank you. So, again, so I'll just go back to now Mr. Pratik Joshi. Mr. Pratik is a young scholar. He has worked with Vivekanand Foundation till very recently, and now he is in London pursuing his further studies. And he also has been doing a lot of research and a lot of academic work on the area. And over to you, Pratik. Now you can start. Yeah, can you hear me? Yes. तो मैं इसको हिंदी में डिस्कशन रखूंगा मैं, और and thank you very much, Siddharth, and it's very good to hear both Bhusin and Vinodji as well. Thank you very much for such an illuminating discussion. मैं थोड़ा अब क्योंकि हिस्ट्री के लिहाज से और लेजिस्लेटिव चेंजेस के हिसाब से विनोद जी ने और बुर्जीन ने बहुत ही अच्छा एक इलैबोरेट अकाउंट दिया है, so I want to focus on the present political situation and how does it say dovetail into India's strategy if India is planning a new strategy. तो मैं इसको तीन हिस्सों में बांटना चाहूंगा अपने डिस्कशन को. वन इज द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन, कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है. दूसरा, इंडिया का केस क्या बनता है लीगली, स्ट्रेटेजिकली, और इसमें क्या किया जा सकता है. और तीसरा, एक कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा कश्मीर और जीबी के सेटअप में. ये कंपैरिजन हम लोग कम करते हैं, ये गिलगित के कुछ एक्टिविस्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज जो एक उनका एक पॉलिटिकल विजन है, जो इनका कुछ लोगों का वहाँ पे ऑटोनॉमी का एक आइडिया है, वो उससे काफी एक मिलता जुलता है जो वो कश्मीर के केस को स्टडी कर रहे थे, बिकॉज दे कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर डिस्प्यूट. एंड दिस इज ऑल्सो कश्मीर का भी जो एक एक्सक्यूज है, वही पाकिस्तान बार बार कोट करता है कि जब उसको गिलगित बल्तिस्तान के बारे में प्रेस करा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं नया, तो वो कहता है जी कश्मीर जब तक नहीं सॉल्व होगा तब तक गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ नहीं हो सकता. इट्स अ वेरी इजी एक्सक्यूज व्हिच दे गेट अवे विद ऑल द टाइम.
तो पहला तो मैं सिर्फ एक लीगल केस पे शुरू करना चाहूंगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का है, सबको पता है। उसमें डेफिनेटली एक इंडिया का केस है और लीगली अगर देखा जाए तो इंडिया के ही सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनते हैं। अब जहां तक स्ट्रैटेजी केस की बात है तो आप देखें, जैसे विनोद जी ने भी डिस्कस करा था, एक जियोपॉलिटिक्स है। आज के आप कंटेक्स्ट में देखें तो कश्मीर में एक मिलिटेंसी है, अफगानिस्तान में अनसर्टेनिटी है, और लीगल इश्यूज के साथ साथ एक इंडिया की तरफ से भी एक मैसेजिंग डेफिनेटली है कि अगर कुछ और दूसरा फ्रंट खुलेगा तो ये भी फ्रंट खुल सकता है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं और बीच बीच में कभी कभी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी थोड़े बहुत हमें डिस्कशंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम अगर समझना चाहें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए असल में पॉलिटिकल मूड क्या है उस एरिया में, वहाँ पे एक्टिविज्म का क्या माहौल है, कैसे पॉलिटिक्स करी जाती है, वहाँ पे मैं जरूर उस चीज पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। एंड आई थिंक ये हमें जरूर, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज एंड डायनेमिक क्या है उधर। तो मैं उस एरिया में पॉलिटिक्स को दो हिस्सों में बांट के देखता हूँ। पहला ये है कि कुछ वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाले लोग हैं जिनको कॉमपरस्त कहा जाता है, मतलब नेशनलिस्ट्स, और जो कॉमपरस्तों का जो स्टांस है वो यूएन इंटरवेंशन में बिलीव करते हैं और वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दे दो जब तक एक क्लियर सोल्यूशन नहीं निकल के आता। तो उनका मतलब ये है कि एक इंटरिम सेटअप बना दिया जाए जिसमें हमें पूरे के पूरे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट्स दे दिए जाएं, और उसके बाद जब ये केस यूएन फाइनली डिसाइड करेगा तब हमें प्लेबिसाइड करने का एक मौका दिया जाए, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। सो बेसिकली दीज पीपल आर समवट प्रो इंडिपेंडेंस। अब ये एक प्रोसीजरल मैटर के तहत देखते हैं इस चीज को, लेकिन इनमें से काफी सारे एक्टिविस्ट्स पर एंटी टेरर एक्ट लग गया है, और एक बार जिस पे वहां पे एंटी टेरर एक्ट लग जाता है वो फिर लंबा जाता है जेल में, और फिर अलग वो कुछ उसकी डीलिंग्स वगैरह होने के बाद यू नो ही इज रिलीज्ड ऑन बेल। और लेकिन थोड़ा वहां पे ये है कि रिप्रेशन हो जाता है और फिर लोग शोर नहीं मचाते हैं, और उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि आपका 90s और अर्ली 2000s में एक बहुत जबरदस्त एक्टिविज्म था, अब वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। पिछले 7-8 सालों में आप देखेंगे ये बहुत ड्रॉप आया है इस चीज में, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे एंटी टेरर एक्ट लग चुका था, और उसके बाद वो नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि फिर उसके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ लोगों की वहां पे प्रॉपर्टी जब्त हो गई। आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल डायनामिक उस एरिया में है क्या। बाकी ये मैंने नेशनलिस्ट्स की बात करती जो एक सम फॉर्म ऑफ यू नो इंटरनेशनलिस्ट उसमें बिलीव करते हैं कि इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन हो और हमें प्लेबिसाइड करने के बाद डिसाइड करने दिया जाए कि हम कहाँ जाना चाहेंगे। अब दूसरी कैटेगरी के लोग आ गए हैं, ये हमें समझना चाहिए, और इसको मैं कश्मीर के केस से कंपेयर करूंगा तो आप समझेंगे कि क्यों मैं इस चीज को ला रहा हूँ। देखिए सिद्धार्थ, 3 जनरेशन वहां पे निकल चुकी हैं, 70-72 साल हो गया है, और काफी मायनों में वहां पे लोगों ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने उनको बहुत कुछ दे दिया है, इसलिए क्योंकि वहां पे कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल खड़ा नहीं हो पाया। और इसी एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स मॉडल को मैं कश्मीर से कंपेयर करता हूँ कि अगर कश्मीर में तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स शुरू से रही है, जब से शेख अब्दुल्ला को सर पे चढ़ा दिया था। जो कश्मीर का आपका ओरिजिन है, आई मीन इंडिपेंडेंट इंडिया में जब कश्मीर एक्सीड होके आया जम्मू एंड कश्मीर, तब से ही ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी, और शेख अब्दुल्ला वाज मेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कश्मीरी एस्पिरेशंस। अब इसके कंपैरिजन में आप अगर देखें धीरे धीरे कश्मीर में क्या होता है कि एक वो जो अलग आइडेंटिटी के चक्कर में धीरे धीरे वो एक सेपरेटिज्म भी चला गया और प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट भी वहां पे एक सीपिंग कर गया, मिलिटेंसी आपकी शुरू हो गई। लेकिन गिलगित में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे अगर 1950 से कुछ कुछ थोड़े बहुत आउटफिट्स भी बने, फॉर इंस्टेंस एक गिलगित लीग करके एक इंस्टीट्यूशन बना था, तो वो बनते ही बैन हो जाते थे। तो जब एक इंस्टीट्यूशनल ही एक माहौल नहीं रहा कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स खड़ा करा जाए और सारा का सारा सेंटर से ही बड़ा एक इंटरवेंशन रहा, तो वो जो 3 जनरेशन वहां पे बड़े हुए उनको लगा कि हम एक फ्लॉड पॉलिटिकल मॉडल के पार्ट हैं, और कहीं ना कहीं जो उनको सोल्यूशन लगा वो यही था कि इस फ्लॉड पॉलिटिकल मॉडल को हम कोशिश ये करेंगे कि एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल में बना दिया जाए। इसके बियॉन्ड वहां पे बहुत मुश्किल हुआ कि यू नो यूएन का क्या मसला है और उसमें फिर गिलगित कहाँ स्टैंड करता है। ये काफी लोगों ने कोशिश करी 90s ऑनवर्ड्स, लेकिन फिर वही था कि वो एंटी टेरर एक्ट वाली बात आ गई तो ये कभी चीजें उठ नहीं पाई। और उसके कंपैरिजन में जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर में ये था कि वहां पे अलग से ही आपका डिस्कोर्स डिफाइन कर दिया गया था, तो उसमें ये हुआ कि
वहां पे जो आपकी सेपरेटिस्ट लीडरशिप थी उसने इंडिया के बारे में कम सोचा, बाकी सबके बारे में उसने ज्यादा सोचा। तो ये आपको एक पैरेलल, ये आपको एक डाइवर्जन दिख जाता है दोनों कंट्रीज के अप्रोचेस में। और दूसरा जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं आपके सेक्टेरियन मामले के लिहाज से, वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस रही हैं स्पेशली। और आप ये इंटरेस्टिंग है केस देखें कि वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो कुछ शुरू हुई वो 1988 में जो एक बहुत बड़ा सेक्टेरियन रॉयट हुआ था उसके बाद शुरू हुई है। और 1988 हो गया या फिर 2004 हो गया जहाँ पे गिलगित की इमामिया मस्जिद थी, उसमें इनके जो हेड एक क्लेरिक होते थे आगा जियाउद्दीन रिजवी नाम से, उनको कत्ल करा गया था। इमाम जुम्मा। तो ये बट द प्रॉब्लम इज कि अब जैसे ही सेक्टेरियनिज्म वहाँ पे बढ़ रहा था और कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे, 2012 आल्सो हैड दिस रिकॉर्डेड वन ऑफ द वेरी सीरियस केसेस। अब उसी टाइम पे सीपीईसी की बात शुरू हो गई और सेक्टेरियन इश्यूज को आर्मी ने बड़े मतलब टैक्टफुली उन्होंने उसको प्रेस कर दिया, मतलब एक तरीके से उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। दैट डज नॉट मीन सेक्टेरियनिज्म बिकेम एब्सेंट, बट द आर्मी हैड इट्स वे ऑफ मैनेजिंग द सेक्टेरियन क्राइसिस कि यार शोर मत मचाओ, सीपीसी आने वाला है। तो ये एक मैनेजमेंट के तहत उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया और ये दिखा दिया कि देखो ये तो बहुत पीसफुल एरिया है। और इसी पे हम जब लार्जर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो देखें कि पॉलिटिकल कल्चर वहाँ पे कैसे आया कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस जब हुए, सॉरी आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शंस हुए 2009 में, तो पहले से ही कुछ पॉलिटिकल कल्चर डेफिनेटली था, बट अब ग्रेजुअली वहां पे क्या करा कि 4 पार्टियां हैं बस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गई, और पीटीआई हो गई। यही तीन आपस में गेम खेलते रहते हैं और कुछ एक दो होंगे इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं, लेकिन उनको भी बड़ा शक की नजर से देखा जाता है, तो उनको बार बार टीवी पे बुला के उनको पाकिस्तान जिंदाबाद उनसे कहलवा देते हैं। सो और आई मीन द पॉलिटिकल सेटअप जो सबने पहले बात करी ली कि वहाँ पे उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कम पावर्स हैं, फिर उसके बाद असल काम तो गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल देखती है जो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। सो ये एक मैंने आपको लेआउट दिया है। और दूसरी एक बहुत ही एक नुआंस्ड पॉलिटिक्स वहाँ पे है जो थोड़ा यहाँ पे नहीं जो एक जहन से बाहर निकल गई थी, वो ये है कि उधर उस वाले एरिया में गिलगित बल्तिस्तान में 2 इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। तो पहला इंडिपेंडेंस डे तो हो गया आपका 14 अगस्त का, जिसमें पाकिस्तान का ऑफिशियली वजूद में आया था पाकिस्तान। और दूसरा आपका जो है 1 नवंबर को दूसरा वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जो उनके हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के हिसाब से ये कहा गया है कि ये 1 नवंबर को तो आप घनसारा सिंह से जो गवर्नर थे उनसे आजाद हुए। तो उनको ये बताया जाता है कि देखो आप पाकिस्तान में आए, वो आपका एक इंडिपेंडेंस है, और दूसरा आपने घनसारा सिंह से आजादी ली, आपका दूसरा इंडिपेंडेंस है, और बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या इंडिया में इन चीजों को, ऐसे नुआंस्ड इश्यूज को लोगों ने उठा के इसमें डिबेट करनी चाहिए कि भाई ये इश्यूज हैं, इनको कैसे एड्रेस करा जाए। तो अगर इन इश्यूज पे बात उठाई जाएगी, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम एक डिस्कोर्स, ऑल्टरनेटिव डिस्कोर्स तो खड़ा करें कि डिस्प्यूट को हम कैसे एड्रेस करते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को हम कैसे एड्रेस करते हैं, और वहाँ पे एक जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है जिसमें उन लोगों को बताया जाता है कि भाई महाराजा तो एक बहुत ही खराब इंसान था, इसको आप कैसे परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री में सब कुछ ही बुरा था, बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स भी हैं उसमें, लेकिन क्या हम उन चीजों को बाहर निकाल के ला पाए हैं, ये मुझे थोड़ा लग रहा है कि इस पे बिल्कुल काम होना चाहिए। और हिस्ट्री के हिसाब से फिर आपके बाद आपका जो इनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उनको कैसे दिखाया जाए। तो ये सब जब तक हम देखेंगे कि इस पे काम होना शुरू होगा, तभी कुछ मतलब बेनिफिट्स इसमें निकल के आ सकते हैं। और लीगली तो डेफिनेटली उसमें तो केस एक है इंडिया का, बट एट द सेम टाइम अगर हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि हम किससे एंगेज कर रहे हैं, हम क्यों एंगेज कर रहे हैं, एंड गेम क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनको हिस्ट्री कैसे समझाई गई है, हमारा क्या एक हम तर्क दे रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं जो उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए हमें देखनी पड़ेंगी। और लास्ट चीज मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा कि वहां पे जो एक ब्रॉड पॉलिटिकल डिवाइड है, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ लोग जो कौम परस्त अपने आप को कहते हैं, और कुछ लोग जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई कुछ हो नहीं सकता तो चलो जैसा चल रहा है चलाया जाए।
ये डिबेट समझ के हम इस डिवीजन को समझ के हम कैसे इंडियन इंटरवेंशन या फिर एक इंडियन एक आइडिएशनल उस पे हम कैसे एक स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Prateek ji. Vivek ji, Vinod ji, are you still there? I think Vinod ji has left. जी, I think Vinod ji is there. Vinod ji is there. Okay. A couple of questions I have. I just wanted to ask both of you in case, I mean, any one of you who's interested to answer. First of all, I just want to understand. I think still there is a lack of clarity in the minds of Indians. I think in the Indian जो research, जो Indian consciousness में है, there's a lack of understanding कि why we have a better control, I mean, better legal stake, legally speaking, if I would say as a lawyer. How do we have a better legal claim compared to the other power centers like China or Pakistan? Because हमारी बाउंड्रीज उस वक्त 1947 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और महाराजा की जो बॉर्डर थी वो कहाँ तक थी, वेदर इट वाज टिल खुंजाब पास और वेदर इट वाज टिल थोड़ा सा नीचे आके, तो इन सब चीजों के ऊपर भी जो है मैंने देखा है काफी अंडरस्टैंडिंग की कमी है. हम लोगों को क्या प्रीच ये किया गया है कि पीओजे इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और मे बी अपना ये 1994 का हमारा एक रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, बट अल्टीमेटली लीगली हम लोग किस तरीके से उस चीज पे क्लेम कर सकते हैं, इस चीज को लेकर ज्यादा डिस्कशन डिबेट है नहीं इंडियन कॉन्शियसनेस में. दूसरा एक चीज ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब ये इंटरट्वाइंड क्वेश्चन है, आप इफ यू कैन आंसर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाई इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम अस टू एक्सप्लोर द एरिया. मतलब जो हमारे डिस्कशन है एकेडमिक सर्कल्स में वो इन इश्यूज पे बहुत बाद में हुए. पाकिस्तान बीइंग अ सिक्योरिटी स्टेट उसने जो है उन इश्यूज के बारे में उनको रेकअप करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था. हम लोग आज भी हमारे जुडिशरी में अभी तक उस रीजन को लेके स्पेसिफिकली बात नहीं हुई है, जबकि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आए दिन कोई ना कोई डायरेक्टिव, कोई ना कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो एक्सटेंड करना चाहता है जीबी में और दूसरे एरियाज में, उसके ऊपर बात करता है. तो ये सब चीजों का जो एक डेफिसिट है इंफॉर्मेशन का, उस चीज को हम कैसे जो है वो मैचअप कर सकते हैं. ये दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे. ये विनोद जी आंसर कर रही हैं ये, या विनोद जी आप. उसके बाद I think Vinod ji he's engrossed with something else because Okay. Can you hear him? Fine. Can you hear him? I can't hear him. Okay, fine. You only answer it. I think आप कर देंगे जवाब इसका. तो पहला तो ये है कि जैसा पहला आपने सवाल पूछा कि what are the territorial limits of India's claim, तो इसमें पहला ये आ जाता है जिसमें हमें समझना एक चीज, अगर आप थोड़ा सा इसमें ट्रांस काराकोरम वाला भी पार्ट बता दें तो वो भी थोड़ा सा मतलब. जी देखें, ट्रांस काराकोरम का तो ये एक बहुत ही एक इंटैंगल्ड मसला रहा था, बिकॉज दिस एरिया यूज्ड टू फॉल. ये बेसिकली जो मीर ऑफ हुंजा जो होते थे, तो मीर ऑफ हुंजा और चाइनीज के आपस में इन दोनों का एक अरेंजमेंट होता था कि जब गर्मियों का वक्त आएगा तो पैस्चर लैंड की तरह इस एरिया को यूज करा जाएगा. तो इसकी मीर ऑफ हुंजा की उसकी जो टेरिटरी से जो आपकी भेड़ बकरियां जो होती थी वो उधर आपके एज अ पैस्चर होता था, तो उधर काफी वक्त बिता के उनके चरवाहे क्रॉस करते थे, ये सब करके उधर एक टाइम बिता के आया करते थे. अब बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे वो फोर्स कर रहे थे मीर ऑफ हुंजा को कि आप एक टेरिटोरियल लिमिट बनाएं. ऐसे तो नहीं चल पाएगा कि ये एरियाज बिकॉज अगर आप ब्रिटिश पॉलिटिक्स को देखें, सो ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड द ब्रिटिश टाइम में जो इंडिया को इनको टेरिटोरियली डिमार्केट करना था, तो बेसिकली इनको एक मैप तैयार करना था इंडिया का और एक बिल्कुल एक टेरिटोरियल डिमार्केशन तैयार करनी थी कि ये बॉर्डर होना चाहिए और इस पे वो दूसरे का होगा, ये हमारा होगा. तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो ऐसे अरेंजमेंट से देखें, ये जो लीनियर बॉर्डर्स का जो कंसेप्ट है ये आपका कहीं ना कहीं बहुत एक मायनों में एक यूरोपियन कंसेप्ट है. बॉर्डर्स पहले भी रहे हैं, हर जगह रहे हैं, लेकिन एक लाइन बना देना और उसको फिर मैप पे दिखा देना और बिल्कुल प्रिसिशन से लाइंस बनाना, ये एक यूरोपियन प्रैक्टिस रही है. और इसी को क्योंकि अंग्रेज चाह रहा था कि एक इंडिया की भी एक नॉर्दर्न लिमिट्स डिफाइन करी जाए, तो और जिसमें जब उसने देखा कि मीर ऑफ हुंजा का तो ये बड़ा अजीब सा अग्रीमेंट है, इसने तो कोई टेरिटरी एग्जैक्टली डिफाइन ही नहीं कर रखी, तो इन्होंने
काफी प्रेशराइज करते रहे थे, लेकिन वो टेरिटरीज डेफिनेटली मीर ऑफ हुंजा के कंट्रोल में थी। और उसी के बिना पे हम ये क्लेम करते हैं कि क्योंकि वो मीर ऑफ हुंजा के पास थी वो टेरिटरीज, तो इसीलिए और क्योंकि जो हुंजा अपनी सुजरेनिटी उसने मानी, महाराजा की सुजरेनिटी मानी, तो उस लिंकेज से, और क्योंकि ये आपके अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी पढ़े हैं तो उसमें उसके लिहाज से जब जो ये आपको दिखता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी सारी की सारी जो ब्रिटिश ने जो ट्रीटी साइन करी थी वो इंडिया की अपनी हो गई। और पाकिस्तान एज ए सिसीडिंग स्टेट था, तो जो पाकिस्तान के अपने टेरिटोरियल एरियाज में कुछ चीजें लाई कर रही थी वो पाकिस्तान की हो गई। जैसे आपका ये बहावलपुर का राजा हो गया, या फिर आपके जो पाकिस्तान में जो रजवाड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में जा रहे हैं। ऐसे ही जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे जो इंडिया की तरफ जा रहे थे, तो उन प्रिंसली स्टेट्स के भी जो और दूसरे अग्रीमेंट्स थे वो भी ऐसे ही इंडिया के पास आ जाते, क्योंकि इंडिया इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन, यू नो, एंड इट आल्सो इमर्ज्ड एज अ क्या कहेंगे उसको, सक्सेसर ऑफ द ब्रिटिश इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के तहत इंडिया के पास वो आया, तो ये एक लीगल पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, पूछ रहे हैं लिमिट्स कहाँ तक हैं। देखिए ये थोड़ा बहुत मुश्किल चीज हो जाती है, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश आर्काइव्स में जाएं तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे नोट्स लिखे गए हैं और महाराजा एक्चुअली बहुत ही नाराजगी से लेटर्स लिख रहा था अंग्रेजों को कि आप मेरा टेरिटोरियल लिमिट ना क्लियर कर दें, आप मेरे को एक बार बता दें कि मेरा एरिया क्या है, ये तो आप मुझे फंसा रहे हैं। आपने क्योंकि आप जैसे विनोद जी ने भी जैसे बोला कि ये एक डुअल एग्रीमेंट्स होते थे, हुंजा हो गया तो चाइना के साथ भी उसकी अपनी पॉलिटिक्स थी, महाराजा के साथ भी अपनी पॉलिटिक्स थी। फिर उसके बाद दूसरा ये था कि क्योंकि ये फ्रंटियर एरियाज होते थे तो इसमें बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश प्रेजेंस थी। और उसमें फिर उन्हें ये भी कर रखा था कि जैसे गिलगित का आप देखने, गिलगित स्काउट्स मैनेज करते थे, अंग्रेज ऑफिसर होता था। उसके बाद कश्मीर में एक रेजिडेंट होता था जो सब रिपोर्टिंग कर रहा होता था कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है। तो जो डुअल सेटअप्स थे उसमें जुरिस्डिक्शंस कैसे डिफाइन करे जाने थे उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे जो गिलगित वजारत वाला एरिया था वो डेफिनेटली महाराजा के पास था, और ऐसे ही जो लीज खत्म होती है आपकी 1947 में, उसमें जो एरिया महाराजा के पास वापस आ जाता है। और क्योंकि उसमें एजेंसी में आपके हुंजा वगैरह पार्ट थे, तो उसके बेसिस पे इंडिया का क्लेम यही है कि जो हुंजा की जो नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी है, और इसको अंग्रेज ने ऐसे डिमार्केट करा था कि उसने ये बोला कि जो काराकोरम वाटर शेड है मतलब उस एरिया में, क्योंकि आप देखें कि ब्रिटिश सेंस ऑफ बॉर्डर्स क्या था, जो ये अंग्रेजों का सेंस ऑफ बॉर्डर्स ये था कि जो पहाड़ जो आपके इंडस रिवर सिस्टम में जो फीड कर रहे हैं जो ग्लेशियर्स, उन पीक से तो वो इंडिया तक हो गए वो वाले पहाड़, और उन पहाड़ों की दूसरी साइड से जो चाइना में रिवर्स आ रही हैं वो चाइना के एरियाज हो गए। तो उसी बेसिस पे इंडिया ने, मैं जैसे आपको सियाचिन ग्लेशियर का एग्जांपल दूं, तो सियाचिन में आप देखें कि मैं इसलिए सियाचिन का एग्जांपल ले रहा हूँ, पाकिस्तान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें वो बोला कि उसने कहा कि अगर आप सियाचिन का वो केस स्टडी करें तो पॉइंट NJ9842 जो आता है, तो पाकिस्तान ने कहा कि इस पॉइंट से जो क्या बोलते हैं दूसरी तरफ जा रहा है बॉर्डर्स, लेकिन इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने कहा नहीं भाई हम ग्लेशियर्स के साथ चलेंगे और हम वहां तक अपना एरिया क्लेम करेंगे जहां तक इंडस का वाटरशेड शुरू होता है। तो जब इंडिया ने सियाचिन को 84 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद लिया, तो इंडिया ने अपना डी फैक्टो जुरिस्डिक्शन वहां तक एक्सटेंड कर लिया जहां तक आपके काराकोरम का वाटरशेड है, जहां तक काराकोरम की टॉप पीक शुरू होती है और वहां से पानी निकल के इंडस रिवर्स में जा रहा होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ऊपर मैप तक ये ले गए थे ये। अब इसी में ही क्योंकि शक्सगम जो जिसको कहते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, इसमें ये सियाचिन के भी ऊपर है और ये हुंजा वाले मीर का एक एरिया होता था। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ कि ये कभी डिस्कशन आपका पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाया, और इसको मैं एक लार्जर पॉलिटिकल इशू से लिंक करना चाहता हूँ कि देखिए जब कश्मीर का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो वो इतना इंटेंगलिंग था, और क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिक्स ही तीन लोगों में चल रही थी, जो थी आपका पाकिस्तान की लीडरशिप में, पंडित जवाहरलाल नेहरू में और शेख अब्दुल्ला में, तो उससे आपका सारा का सारा फोकस ही कश्मीर वैली पे आ गया। तो आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि कश्मीर वैली भी आ गई थी इंडिया के पास, लद्दाख भी आ गया था और आपका जम्मू भी आ गया था। बट अगेन डिस्कोर्स ऐसा खड़ा हुआ कि सारा का सारा मसला ही कश्मीर पे है, जबकि जोग्राफिकली लद्दाख इज अ लार्जर टेरिटोरियल एक्सपेंस।
तो अब क्योंकि आपका सारा का सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स वाज सराउंडिंग कश्मीर, कश्मीरीज एंड शेख अब्दुल्ला, तो उससे ये हुआ कि जो इंडियन नेशनल इमेजिनेशन थी उसमें गिलगित का कोई जिक्र नहीं आता है। और जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग आती है गिलगित वगैरह की, बल्तिस्तान की निकल के, वो एक एपिसोडिक इशू आता है। एपिसोडिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे काराकोरम हाईवे बन गया तो इंडिया ने शोर मचा दिया, ठीक है। जैसे सीपीसी आ गया तो फिर इंडिया ने शोर मचा दिया। फिर जैसे इलेक्शंस आ गए तो फिर इंडिया ने कह दिया यार एक डिमार्च भेज दिया पाकिस्तानी हाई कमीशन या पाकिस्तानी अथॉरिटीज को। तो ये एक एपिसोडिक हमारा रहा है, क्योंकि अगर हम नेशनल इमेजिनेशन का, अगर एक नेशनल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हम उसको एज अ स्टडी करें, तो आप ये बताएं कि, और मैं इसमें भी कंपैरिजन एक लाना चाहूंगा कि जैसे फॉर पाकिस्तान कश्मीर बिकम्स एन अनफिनिश्ड बिजनेस, दैट इज द आइडियोलॉजी, ठीक है। हम उसको कितना भी अंडर प्ले करें इंडियन साइड से, लेकिन फॉर अ कॉमन पाकिस्तानी, फॉर द पाकिस्तानी स्टेट, दे कंसिडर कश्मीर एज समथिंग कि हमें इसका सोल्यूशन करवाना ही है, कैसे भी करवाना है, लेकिन हमें करवाना है। इसको हमें लेंगे या आजाद करवा देंगे जैसा भी है, बट एक सोल्यूशन होगा इसका, ऐसे नहीं चलने देंगे। बट सर आजादी का तो जो क्वेश्चन है वो तो मतलब बनता नहीं ना, कारण कि दे ऑलरेडी वायलेटेड 1948 बिल्कुल रेजोल्यूशन है, बिल्कुल 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 72 दैट में इज ट्रू। नो नो, मैं तो उसमें बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनको लेकिन एक इमेजिनेशन है कि हमें कुछ तो करना है, तो करना है उस चीज का। वायलेट करेंगे, प्रॉक्सी करेंगे, यूएन में ले जाएंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। अब आप कंपेयर उसके, और दूसरा क्या है कि समवेयर डाउन द लाइन पाकिस्तान हैज बीन एबल टू यूज द रिलीजियस कार्ड, ठीक है, कि वो एक इस्लामिक सॉलिडारिटी के नाम पे उन्होंने एक अपना एक अलग डिस्कोर्स खड़ा करा। लेकिन आप कंपैरेटिवली अगर गिलगित के केस में देखें तो ये एक नेशनल इमेजिनेशन में, ये पेपर पे रहा हमारा क्लेम। हमने एक मैप बना के दिखा दिया कि ये पीओके है और इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन क्या उस पेपर के बियॉन्ड कुछ एक ऐसा एफर्ट हुआ कि एक नई डिबेट खड़ी की जाए, कुछ नया डिस्कोर्स लाया जाए? ये मुझे लगा कि ये बिल्कुल मिसिंग है, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये एपिसोडिक है कि एक तरफ से इंडिया इसको क्लेम भी करता है, बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी एपिसोडिक। की जैसे मैंने कहा कि काराकोरम हाईवे बना, तो आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहे थे कि अरे वो हाईवे बन रही है, क्या करा जाए, फिर गायब हो गया। फिर उसके बाद आपका 90s में एक रेजोल्यूशन आया कि पूरा जो कश्मीर है वो हमारा पार्ट है, फिर गायब हो गया। फिर उसके बाद आपका सीपीसी आया, तो फिर उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि एक सस्टेन्ड एक उस पे बेसिस पे चल रहा है कि ये जो डिस्कशन है अब ये रेगुलर हो गए हैं। लेकिन क्या उस रेगुलरिटी को एक डायमेंशन मिलनी चाहिए, ये डेफिनेटली इंडियन लीडरशिप के ऊपर है कि वो कैसे डिसाइड करती हैं। सो आई थिंक देयर आर फेजेस। वन इज आप क्या उसको डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दूसरा फेज आप कितना रेगुलरली उस चीज को डिस्कोर्स में ला रहे हैं। और तीसरी चीज है कि उस रेगुलरिटी को किस डायमेंशन में ले जा रहे हैं। और ये मेरा बस यही एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो वहाँ की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, प्रेजेंट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, उसको समझें और उसको एक लीगैलिटी के तहत देखें, और फिर एक इंडिया अपना केस खड़ा कर सकता है। और इस पे अगर कुछ पहल होगी तो कुछ डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स आएंगे। स्ट्रैटेजिक इश्यूज देखें वो तो हमारे आपके डिस्कशन के हैं नहीं, वो तो स्टेट के अपने कुछ इंटरनल डिस्कशंस होते हैं वो। हाँ, तो वो देखें, वो हर स्टेट करता है, वो पाकिस्तान भी करता है, वो तो सारे, वो तो खैर it's a part of a state crowd, but on legal issues, on certain political issues, what we are doing, I think there is a dimension which needs to be added to this regularity. तो ये होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम क्या पता देखें कि और एक इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हों इस पे, और कुछ मूवमेंट्स आपकी, जैसे मैं बोलूंगा कि पॉलिटिकल उस पे डेवलपमेंट्स अच्छी हों, और एक रिस्पॉन्सिव एक स्ट्रैटेजी बनाए इंडिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने थैंक यू सो मच सर। इतना समय दिया, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन व्हिच वी हैड टुडे जी जी, in the थैंक यू। span of 1 hour, despite the fact that attack हुआ हम पे। Yeah, that was very strange and very but I was bad, yeah. glad, but to be very honest, मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे लगा कि हमारे डिस्कशन को इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। हाँ, मतलब ये तो मतलब ये तो एक जस्ट आई थिंक द टॉपिक वाज इनफ टू अलार्म सम पीपल, कि मतलब आप ये देखें कि हमने सिर्फ ये बोला कि पॉलिटिकल डिस्कशन, हमने तो ये भी नहीं लिखा कि कौन क्लेम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इट वाज अ जनरल डिस्कशन ऑन जनरल डिस्कशन, कि बट उस पे भी साइबर अटैक कर दें तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कि वो सुन लेते, अगर 4 हैकर आके सुन ही लेते तो अच्छा लगता उनको। तो
जी चलिए भाई, बच के रहिए वर्चुअल वर्ल्ड में अभी Okay. साइबर अटैक से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू, Okay, थैंक thank यू, ओके Bye. बाय। रिकॉर्ड हो गया ना? एंड मीटिंग फॉर